Hello, everyone. I hope you all will be good. Welcome to a lecture in the series for pestle analysis. Just to revise, हमने अभी तक we have covered. We basically started from political factors, then we covered legal factors, then we started economic factors. जिसमें I told you कि economy is subdivided into two portions: macroeconomics and microeconomics. And we covered macroeconomics. That was a quite lengthy topic. Same goes with the microeconomics. Aaj we are going to start this new topic in the economic factors, and microeconomics is also going to continue for the next 3 to 4 lectures, most likely, right? Macro and microeconomics, these are very, very important topics in business and technology. So you need to make sure, number one, that you are understanding everything, and how you are going to understand by watching the entire lecture. Okay, if you're watching half the lecture, if you're watching lecture on 2x speed, so this is something not going to help you. This is something कि जिसमें आप अपना time ही जाया कर रहे हैं. So only it's better to understand this lecture and watch the entire lecture so that you understand everything. Okay, आज अगर आप टाइम देंगे खुद को, तो कल को आपको एग्जाम में जो है वो अच्छा स्कोर करने को मिलेगा. If you are just playing with your time, then definitely you are not going to get your desired results in the uh, uh, exam. Okay, so make sure to watch this video until the end, and do ask me any questions that you feel. You can connect with me over WhatsApp, you can connect with me over in the comment section, and you can also connect with me over the Instagram. So whatever is feasible for you, you can connect me over and there. So now let's start the lecture. आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी की. And what is micro economy? Micro economy is a study of economy at a smaller level, such as individual level or individual preference, market level, industry level. Okay, हम ये पढ़ते थे कि जो मैक्रो इकोनॉमी है, that deals with economy over for the country. माइक्रो इकोनॉमी इस इकोनॉमी को सब डिवाइड कर देती है डिफरेंट सेक्टर्स में. लेट्स से, अब इफ आई टॉक अबाउट अब यूके, तो व्हाट्स द ज्योग्राफिक, जो लंदन की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, स्कॉटलैंड की इकोनॉमी कैसी है, नॉर्दर्न आयरलैंड की इकोनॉमी कैसी है, वेल्स की इकोनॉमी कैसी है, राइट? फिर अगर मैं अब जो है वो सिटी वाइज बात करूं, तो लंदन की इकोनॉमी कैसी है, मैनचेस्टर की इकोनॉमी कैसी है, अब देन वी हैव बर्मिंघम की इकोनॉमी कैसी है, राइट? सो एक माइक्रो इकोनॉमी आपकी बड़ी इकोनॉमी को डिवाइड कर देती है इनटू स्मॉलर सेक्शंस. अब वो सेक्शंस मार्केट के लिहाज से भी हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, लेट्स से पाकिस्तान में ऑयल मार्केट का क्या स्कोप है, आईटी मार्केट का क्या स्कोप है, अकाउंटिंग मार्केट का क्या स्कोप है, अब लेट्स से रिटेल मार्केट का क्या स्कोप है. तो आप अपनी इकोनॉमी को सब डिवाइड कर देते हो इनटू स्मॉलर सेक्शन, राइट? एंड आप सारे सेक्शंस को फिर इंडिविजुअल बेसिस पे एनालाइज करते हो. अच्छा, अगर एक कंपनी जो है, लेट्स से वो रिटेल इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, तो वो कैसा परफॉर्म कर रही है, वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट बाय लुकिंग एट not on macro economy, but we will be working on the micro economy of the retail industry, राइट? हम रिटेल इंडस्ट्री की मार्केट देखेंगे कि अच्छा, एक स्पेसिफिक कंट्री में वो रिटेल इंडस्ट्री बूम पर है या रिसेशन में जा रही है. इज इट वर्थ एंटरिंग द, यू कैन से, द रिटेल मार्केट, और इट इज नॉट वर्थ एंटरिंग द रिटेल मार्केट, राइट? तो आप माइक्रो इकोनॉमी को छोटे लेवल पर, का मतलब ये होता है कि आप छोटे लेवल पर इकोनॉमी को डील कर रहे हो. माइक्रो इकोनॉमी में दो तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर डिमांड कर्व. ओके, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि डिमांड कर्व क्या होता है. डिमांड एंड प्राइस में रिलेशन आपको बताता है. द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डिमांड कर्व है, वो क्या बताएगा, वो डिमांड एंड प्राइस रिलेशन बताएगा. ओके, ये आपको बताता है कि what is going to happen when you are going to increase or decrease the price, or what's going to happen alternatively if you are going to increase or decrease the demand. ओके, सो आप सब लोगों को पता है, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग कि अगर आपकी प्राइस राइज करती है,
तो आपकी डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ, अगर मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री की एग्जांपल दूं तो मेहरान की एग्जांपल ले ले, मर्सिडीज की एग्जांपल ले ले। You will see 100 of Mehrans at a single traffic signal, but you will see hardly one Mercedes at a specific traffic signal. This shows कि जितना आप एक चीज की प्राइस को इंक्रीज करते हो, उतना ही उस प्राइस की उतना ही उस चीज की जो डिमांड है वो फॉल कर देती है। ऑटोमेटिकली प्राइस जितना फॉल करेगी, आपका आपकी जो डिमांड है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वो उतना ही इंक्रीज करेगी। ओके, my personal, it's my personal preference is to study micro economy. मुझे macro इतना अच्छा नहीं लगता, right? Because that's kind of boring. That is what I feel basically. Someone can, अब उनके अपने ख्यालात हो सकते हैं. I personally feel, discussing about micro economy more. So this is kind of my favorite topic basically. सो होगा क्या कि प्राइस जब आपकी इंक्रीज करेगी तो डिमांड आपकी फॉल कर जाएगी, एंड जब प्राइस फॉल करेगी तो डिमांड आपकी इंक्रीज कर जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ऐसा ही है। देन हम आगे चलते हैं और हम ये जो डिमांड है ना और प्राइस है, इसके रिलेशन को डिमांड कर्व ग्राफ में शो करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग एक ग्राफ में शो करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो ये कि ये जो प्राइस राइज डिमांड फॉल, प्राइस फॉल एंड डिमांड राइज, इस सिनेरियो को या इस कॉन्सेप्ट को या यू कैन से इस रिलेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये आपका क्या होता है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ओके, मैंने दामाद लिख दिया था, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आपकी डिमांड कर्व ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो देखिए, हम वाई एक्सिस पे प्राइस को लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी पे लिखेंगे। अब प्लीज मुझसे ये कोई ना पूछे कि हम क्यों वाई एक्सिस पे प्राइस को लिख रहे हैं, क्यों क्वांटिटी को जो है एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं, बिकॉज आई नो आपने मैथ्स पढ़ी भी होगी और आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस जो है आपकी एक्स एक्सिस पे है, क्वांटिटी जो है आपकी वाई, सॉरी माय बैड, प्राइस आपकी वाई एक्सिस पे है, क्वांटिटी आपकी एक्स एक्सिस पे है। अब देखें कि अगर आपकी प्राइस P1 लेवल पर है, ठीक है, मैं आपको यहां भी बता देता हूं, अगर प्राइस आपकी P1 लेवल पर है जो कि आपका हाई लेवल है, ठीक है, अगर प्राइस आपकी हाई लेवल पर है तो आपकी डिमांड जो है वो किस लेवल पर होगी, लो लेवल पर होगी, जो आपके ग्राफ में शो किया जा रहा है Q1 से। तो देखिए, आप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कि P1 पर आपकी प्राइस कितनी है, सॉरी P1 की प्राइस पर आपकी क्वांटिटी कितनी है, Q1। लेकिन अगर आप अपनी प्राइस को कम कर देते हैं, आप अब लो लेवल पर चले जाते हैं जिसको उसने पी से डिनोट किया हुआ है, तो आपकी जो डिमांड है वो हाई लेवल पे चली जाएगी, एंड दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। यू कैन क्लियरली सी दैट, राइट? सो आपने क्या करना है, आपने ये समझना है कि अगर हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी क्वांटिटी फॉल करती है, डिमांड फॉल करती है। एक चीज की जो नीड की नहीं, हम आई विल से, आई गेस इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज हियर, आई विल से द डिमांड और द रिक्वायरमेंट, यस, द रिक्वायरमेंट जो है उस चीज की वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक प्राइस को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक चीज की डिमांड हाई हो जाती है। यू कैन अब if sorry, if someone that is watching my lecture at the moment might relate to their household needs, के गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जब आपके जो टमाटोज होते हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो क्या करते हैं, वो प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, राइट? एंड दैट इज बेसिकली द टाइम जब आपके जो है वो आपकी अम्मा जान जो है, वालदा मोहतरमा जो है, शी बेसिकली बायज, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा ही होता है भाई, आई बिलोंग फ्रॉम अ देसी फैमिली, राइट? सो हमारे घर में ये होता है कि मेरी अम्मा जान क्या करती हैं, अब मेरी अम्मा जान ये लेक्चर ना देख ले मेरा, तो व्हाट शी डू इज कि वो ना बहुत ज्यादा टमाटोज जो है ना, टमाटर जो है वो उनको लेकर वो फ्रीज कर देती हैं, राइट? सो ऑब्वियसली वो सस्ते मिल रहे होते हैं, तो वेन एवर जब वो महंगे मिल रहे होते हैं तो शी डोंट बाय द महंगे वाले टमाटर। सो व्हाट शी डू इज, वो जो फ्रीज हुए हुए टमाटर होते हैं, वी यूज दोस टमाटोज, राइट? सो यू कैन रिलेट फ्रॉम दिस थिंग कि जब एक चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, लोग बहुत ज्यादा वो चीज बाय करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि सफायर जो आपका क्लोथिंग ब्रांड है, पाकिस्तान का बड़ा फेमस ब्रांड है, जब उस पर सेल लगती है तो द लेडीज कैन विल रिलेट, जो मेरे फीमेल स्टूडेंट्स है दे विल रिलेट कि वो भागते हैं सेल की तरफ, बिकॉज दे आर गेटिंग थिंग्स एट अ वेरी लोअर प्राइस, राइट? जो कि हकीकत में होती नहीं है,
राइट नाउ दैट इज समथिंग अ डिफरेंट डिबेटेबल टॉपिक कि डिस्काउंट्स रियल होते हैं कि नहीं होते. सो उस पे कभी अगर टाइम मिला मुझे तो वी विल श्योरली have a debate on this, but sticking to the topic, let's not इसको लंबा नहीं करते. तो होगा क्या कि जब आपकी प्राइस इंक्रीज, सॉरी, जो मैं बता रहा था कि सफायर पे जब वो सेल लगती है तो वो अपने सूट्स जो हैं वो कम प्राइस पर दे रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है. बट वही नॉर्मल डेज पे न्यू अराइवल्स में अगर आप देखो तो 10,000 12,000 का एक सूट है तो उसकी प्राइस हाई होती है, तो क्वांटिटी, उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, राइट. सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एंटायर conversation is, sorry, not conversation, because I'm just talking to myself at the moment. So that is going to be from this lecture is that high price leads to lower demand and a low price leads to higher demand. I hope यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई हो. Now let's move a little bit, further. और इसमें बेसिकली जो है हम मजीद कुछ चीजों की बात करते हैं. और अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में वो ये कहता है कि लेट्स अज्यूम कि एट अ फिक्स्ड प्राइस, अगर हम अपनी प्राइस को फिक्स रखते हैं, हम प्राइस चेंज नहीं करते, एट अ फिक्स्ड प्राइस, इफ डिमांड फॉल्स, फॉर एग्जाम्पल मैं डमी नंबर्स अज्यूम कर लेता हूँ, फॉल्स फ्रॉम 5,000 यूनिट्स टू 3,000. लेट्स से आपकी प्राइस फिक्स है लेकिन आपकी डिमांड फिर भी फॉल कर रही है 5,000 से 3,000 यूनिट्स पर. तो आपका ये जो डिमांड कर्व लाइन होगी, आपकी डिमांड कर्व लाइन, इट शिफ्ट्स टू लेफ्ट ऑफ ग्राफ. मैं आपको अब ग्राफ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ. यस, अब आप देखें, मैंने आपको पहली बात क्या बताई कि अगर आपकी प्राइस फिक्स्ड है, ठीक है, और आपकी फॉर इंस्टेंस अज्यूम करते हैं कि आपकी डिमांड जो है इट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम 5,000 टू 3,000, तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन डिमांड बट एट अ फिक्स्ड प्राइस. तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी रहेगा, ये प्राइस तो सेम है तो पॉइंट तो ये सेम रहेगा. तो आपकी बेसिकली लाइन जो है ना, अगर मैं आपको इस पर जो है वो आई एम नॉट श्योर कि हाँ इस पे मैं अब लाइन दिखाऊं तो वो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से आपका ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट. ये वाली चीज, ओके. तो जैसे ही आपकी डिमांड कम होगी तो आपकी प्राइस जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी. आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी. अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डिमांड क्यों आपकी कम हुई है, बट फिलहाल के लिए आप अभी ये समझे कि डिमांड कम हो रही है. सिमिलरली अगर मैं यहां पर यूं लिखूं कि एट अ फिक्स्ड प्राइस, इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम और राइज फ्रॉम 5,000 टू 8,000, लेट्स से, तो सो डिमांड कर्व लाइन, इट शिफ्ट्स टू राइट ऑफ. ओके. अब राइट ऑफ ग्राफ में कैसे होगा, फॉर इंस्टेंस जो है, मैं अगर जो है वो इसी की लाइन को ही दोबारा से ड्रॉ करूं, तो देखें अब आपकी प्राइस अगेन सेम है लेकिन डिमांड आपकी इंक्रीज कर रही है. तो देखो पहले डिमांड जो है फॉल कर रही थी, तो यहां से यहां पर आपकी डिमांड फॉल कर गई थी. अभी आपकी प्राइस वही है, डिमांड इधर इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं इसको यूं करके जो है वो बना लेता हूं, ठीक है. तो आप देखेंगे कि पहले आपकी डिमांड जो थी वो आ, इस पॉइंट पर थी, यहां पर, राइट, इधर थी. अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि आपकी जो डिमांड थी वो आपकी इंक्रीज कर गई यहां से इस पॉइंट पर, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली देखिए ये छोटा पॉइंट था, ये ज्यादा बड़ा पॉइंट हो गया, यानी डिमांड आपकी इंक्रीज कर गई, राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ते हैं कि अगर आपकी प्राइस फिक्स्ड है, आपकी प्राइस चेंज नहीं कर रही, स्टिल देयर आर सम सर्टेन रीजंस, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है.
अगर आपकी डिमांड कम या ज्यादा हुई तो आपका जो डिमांड कर्व है, लाइन है, वो आपकी प्रॉपरली लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि भाई अगर प्राइस फिक्स है तो डिमांड कैसे कम या ज्यादा हो रही है। तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन से हैं, मैं वन बाय वन यहां लिखता हूं, देन आई एम गोना एक्सप्लेन। सबसे पहले कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखिए जी, मार्केट में फोन चल रहा था, उसकी प्राइस थी 50,000, लोग जो है दे वर बाइंग द फोन। बट फॉरन ही आपकी, अब आपकी जो कंपनी है उसने, जो सॉरी जो कंपैटिटर कंपनी, उसने एक नया फोन लॉन्च कर दिया। तो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक पुराने फोन की प्राइस कम ज्यादा नहीं होती, प्राइस उसकी फिक्स्ड है, आपकी जो पुराना फोन है उसकी प्रेफरेंस कम हो जाएगी एंड लोग जो है वो नए फोन को खरीदेंगे। राइट, सो याद रखिएगा कि बेसिकली जो एक कंज्यूमर प्रेफरेंस होती है या डिजायरेबिलिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जब वो चेंज हो जाती है, इंक्रीज डिक्रीज करती है, तो आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? मार्केटिंग का होता है एंड कंज्यूमर, जो आप कंज्यूमर टेस्ट का जो है ना, इसमें आ जाएगा। राइट, सो याद रखिएगा कि फॉर इंस्टेंस अगर एक बेकरी है जो केक्स प्रोवाइड कर रही है और उसी के साथ वाली बेकरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का केक बना के दे रही है, राइट, सो ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू शिफ्ट देयर टेस्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस बेकरी टू द ऑर्गेनिक बेकरी। राइट, सो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आपकी डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं। देन वी हैव नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स में क्या होगा कि ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड जो है वो बढ़ रही होगी, इंक्रीज होगी एट अ फिक्स प्राइस। लेकिन आपकी पॉपुलेशन कम है, फ्यूअर पीपल है, तो इवन एट फिक्स प्राइस आपकी डिमांड जो है वो रिड्यूस हो रही होगी या कम हो रही होगी। ठीक है। देन इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज हमारे पास इनकम। लोगों की इनकम ज्यादा तो खर्चा भी ज्यादा, इनकम कम तो खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो आई बिलीव दिस इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड। देन सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल है? ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक चीज को कितनी तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। इफ यू जस्ट हैव वन काइंड ऑफ ब्रांड दैट इज सेलिंग कार्स, सो एवरीवन इज गोइंग टू बाय कार्स फ्रॉम दैट ब्रांड, सो इवन एट अ फिक्स्ड प्राइस उसकी डिमांड इंक्रीज कर रही होगी। राइट, लेकिन इफ अ कंट्री हैज 10 thousands ऑफ डिफरेंट कार ब्रांड, सो ऑब्वियसली बात है फिर यू नो बाइफरकेशन हो जाती है, डिवीजन हो जाती है आपकी मार्केट की, तो अब हर बंदे की प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है, अब एक और इसमें पॉइंट आ जाता है। एक तो कंज्यूमर प्रेफरेंस होती है, कंज्यूमर प्रेफरेंस के बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कि कंज्यूमर एक्चुअली चाह क्या रहा है। यार अगर आप एक बंदे को वो तमाम चीजें दे रहे हो जो वो चाहता है, जो उसकी नीड्स हैं, एंड यू नो द थिंग्स दैट द पर्सन वांट्स इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, so the person is going to buy that product of yours even at a higher price, even at a fixed price, does not matter, right? मैं इसकी एग्जांपल अपने से इस तरीके से रिलेट करके दे सकता हूँ कि समटाइम्स आई आई क्रेव फॉर, क्योंकि मैं आई एम अ पर्सन जिसको आई लाइक ईटिंग स्वीट्स, मुझे ना मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, मीठा खाना। आई एम स्पाइस इंटॉलरेंट, तो मुझे मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो रात को अक्सर होता है, स्पेशली डिनर के बाद, कि आई आई क्रेव फॉर सम मीठा। सो उस वक्त जो है व्हाट आई डू, आई ऑलवेज लुक फॉर द कन्वीनियंट ऑप्शंस। फिर मैं उस वक्त जो है, मेरी प्रेफरेंस को देख के आई जस्ट नीड समथिंग मीठा टू ईट। एंड उस वक्त में प्राइस की इतनी जो है ना मेरी इतनी वो नहीं होती कि मैं देखूंगा अच्छा ये चीज महंगी मिल रही है, ये चीज सस्ती मिल रही है। आई मेजरली प्रेफर कि भाई मेरे पास कुछ मीठा होना चाहिए। राइट, सो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी इस चीज को अफेक्ट करती हैं कि इफ द पर्सन सीज के भाई उसको जो चीज चाहिए वो आपके पास है, एंड द पर्सन रियली नीड्स दैट थिंग, सो द पर्सन इज गोइंग टू बाय दैट थिंग नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। लेकिन अगर आप एक कस्टमर को वो चीज ही नहीं दे रहे हो जो उसको चाहिए, तो ऑटोमेटिकली द कस्टमर विल नॉट बाय दैट थिंग। राइट, सो आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। So this was basically, the end of our demand curve. And this also marks the end of our today's lecture. अब जो next lecture होगा उसमें हम माइक्रो इकोनॉमी का next section पढ़ेंगे. That basically will be supply curve. Right? So I hope so you will be you did understand this thing. So until next lecture, guys, take care, eat healthy, sleep well, and have a good day. Bye.